की बड़ी खबर राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर हंगामा होने लगा और जिसके बाद सदन की कार्रवाई को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज सदन की कार्रवाई को 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई तुरंत हंगामा वहां पर शुरू हो गया और इसी को देखते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसको लेकर हंगामा विपक्ष कर रहा था। आपको बता दें कि राज्यसभा 9 से 2 बजे तक के लिए है आज और लोकसभा 4 से 10 बजे तक के लिए। कोरोना काल में इस तरह के बदलाव किए गए हैं। इस बीच 8 अप्रैल तक ये सेशन चलना है, दूसरा चरण है, लेकिन साथ ही साथ हंगामा काफी ज्यादा, जिसमें पेट्रोल और डीजल की लगातार महंगी होती कीमतों को लेकर हंगामा हुआ और कार्रवाई को फिलहाल 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम पर वो बहस करना चाहते हैं। I don't want to take any drastic action on the first day. The House is adjourned to meet at 11 o'clock. और अब बात करते हैं बंगाल के सियासी घमासान की। भारत माता की वंदे वंदे वंदे, भारत माता की। दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है, तभी तो ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे। খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये खूब खेलना जानते हैं। खेलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा। बोलो दिल्ली को तो बस दिया। मृग्या, डिस्को डांसर, प्यार झुकता नहीं जैसी तमाम हिट फिल्मों के हीरो मिथुन चक्रवर्ती पर बंगाल में अब तूफान मचा हुआ है। वो बीजेपी में शामिल हुए तो टीएमसी ने भी पूछा कि इनका राज्य से क्या कनेक्शन बचा है। अब जो भी नजदीक है वो हमारे करीब है, जो उसको स्वीकार करता है वो हमारे करीब है। लोग आ रहे हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करके आ रहे हैं और तमाम जगह भगदड़ मची हुई है। तो इस बात का आपको एहसास होना चाहिए कि जो जनता में सोच है वही जो तमाम जो ठीक सोच वाले नेता हैं उनमें भी सोच वही है। Fourth party, he has joined. He started as a Naxalite, then became CPM, supporter of Subhas Chakraborty. Then he joined the TMC. Then he has joined the BJP today. He is not a reliable man at all. He has no connection with Bengal. He stays either in Bombay, in his mud island bungalow, or in Ooty, in his hotel. He has no connection with Bengal. কালকে প্রথমবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, আমার এসছেন, কথা হয়েছে। পার্টি ঠিক করবে এখন সে ক্যান্ডিডেট হবে কি হবে না, এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা হয়নি। উনি কি বাংলার মুখ? আমি জানি না, মুখ তো জনতা ঠিক করে। Mithun Chakraborty in the flame in many roles. Sometime in disco dancer and other roles. So I have seen in politics also Mithun Chakraborty with Subhas Chakraborty, late Subhas Chakraborty with CPM. I have seen Mithun Chakraborty in Trinamool. Now I am seeing Mithun Chakraborty in BJP, and I expect to see Mithun Chakraborty in others party and in other role too. वैसे बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती बड़े सस्पेंस के बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। हर तरह की सियासत के रंग देख चुके मिथुन बीजेपी में कितना फिट रहेंगे? क्या वो सिर्फ प्रचार ही करेंगे या फिर चुनाव भी लड़ेंगे या सीएम बनने की ख्वाहिश वाले बैठे हैं? देखिए उनसे खास बातचीत। It's a big decision, but how did this come about? First of all, that big day for politics, then, sorry, I have not joined it for politics because I do not understand Rajniti. I believe in Manusha Niti. Manav Niti mein believe karta hu main. And my thinking always goes towards that. I know people are talking pehle extremist ke saath tha, fir Subhas Da ke saath. But if you look at
the scenario, I've been with Jyoti Basu, I have been with Subhash Da because they are for the people. So now again you said BJP means not for politics, not for any. I do not have political ambitions, but for the sake of the people of Bengal, if I have to take a plunge in a bigger way, I'll do it. You really think Modi ji can make a difference to Bengal? He's making a difference to the not only India, but if you are really open up, then he has done a lot of difference in the world even, as one of the biggest leaders. It is not that I have to say because I have made Prime Minister. No. I read it. I know it. Because you have to do politics, you have to say, no, it's not that true. Well, you can do it, good, bad. But he has been a big leader, even on the world stage. What is going to be your role in the BJP then? Will you fight this election? That's the big question. Right now, that is from the above, they will tell me, I'll follow that. You're open to that idea? Anything they say. And right now, I'm going to campaign for them, as many as them they want me to do. तो इस बीच ये तस्वीर भी बहुत अहम है। कल की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जब मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हुए थे, प्रधानमंत्री के मंच से आने से पहले ही सबसे पहली लाइन यही थी कि मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। मोदी का ना सपना पूरे होने जैसा। बंगाल में रहने वाला हर शख्स बंगाली। याद कीजिए, ममता बनर्जी बार बार बाहरी और बंगाली का जिक्र करती आई हैं और यहां पर मिथुन चक्रवर्ती ने इसी मंच से, ब्रिगेड परेड ग्राउंड के मंच से, ममता बनर्जी टीएमसी को जवाब दिया कि बंगाल में रहने वाला हर शख्स बंगाली है। उसका जवाब सीधे सीधे टीएमसी को ही था। उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र थी जब गरीबों की सेवा करने का सपना मैंने देखा था और वो सपना मैं जरूर पूरा करूंगा बीजेपी में शामिल होके। बंगाली होने में गर्व है, मैं दिल से बंगाली हूं। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि कोई अगर हक छीनेगा तो मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा। यानी ये भी बताने की कोशिश, देखिए जिस तरीके से बीजेपी बार बार ये कह रही है कि बंगाल में विकास नहीं हुआ है, बंगालियों का हक छीना गया है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने जवाब भी रखा। Many are saying that possibly you can be the prospective chief ministerial candidate. Is there something in your mind? In my mind, how dare I do? But it is a protocol of the top leaders, and I will not break that protocol. Because we have leaders like Dilip Da, Kailash ji and others, all big leaders. They have made BJP what they are today. मैं तो उड़ता हुआ एक कौवा हूँ, बैठ गया हूँ. I really want to understand as far as the ideological point of view, because as you mentioned yourself, at one point in time you did believe in Naxalite movement, then you were very close to CPM leadership, you came close proximity with Mamata Banerjee, and now of course the RSS and the BJP. Where is your ideological positioning, your personal? Now, tell me one thing. Do we not have the same language? Every party talks about the poor people, whether it is the extremist, communist, whether Trinamool or BJP or anybody. But wherever is the genuine stand, they will win. But ideology is the same, to do something for the poor people. And I follow the same rule. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता रैली के बाद आज कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चुनावी अभियान देखने को मिलेगा, क्योंकि राजधानी में ममता बनर्जी आज मार्च करेंगी, जिसमें टीएमसी यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाएगी और बीजेपी पर हमला बोलेगी। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां लोगों को पलायन करने पर मजबूर न होना। मोदी को हराएंगे। बंगाल में इस बार धर्म युद्ध चल रहा है। साथ ही लड़ाई बंगाली अस्मिता वर्सेस बाहरी के मुद्दे पर है। बांग्ला शासन करबे ना, बांग्ला शासन करबे, गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, मोदी बांग्ला शासन करबे ना, गुंडारा करबे ना। लड़ाई सोनार बांग्ला वर्सेस बंगाल की बेटी में है। जो भी बंगाल से छीना गया उसे वापस लौटाए। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा। मानो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली को लाल
बंगाल की सियासत में आज कोलकाता एक और सियासी अखाड़े का गवाह बनने जा रहा है। आज तारीख है 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मार्च करने जा रही हैं। ममता ने अपने इस मार्च के जरिए बीजेपी पर पलटवार की पूरी तैयारी की है। उनका चुनावी इरादा साफ है, किसी भी सूरत में टीएमसी बीजेपी के मिशन बंगाल को कामयाब नहीं होने देना चाहती। इसी इरादे से ममता ने अपना यूपी प्लान बनाया है। कोलकाता में मार्च कर ममता यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा उछालेंगी और एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश करेंगी। बीजेपी कई मंच पर कई मौकों पर ममता राज में महिलाओं पर हुए अपराध का मुद्दा उछाल चुकी है। अभी हाल ही में पार्टी ने उत्तरी 24 परगना की 85 साल की बुजुर्ग पर हमले का आरोप लगाकर बंगाल सरकार पर सवाल उठाए थे। घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया। बीजेपी ने कोलकाता और राज्य के कई शहरों में महिला अपराध को लेकर पोस्टर वॉर शुरू कर दिए। ममता के चुनावी स्लोगन पर सवाल उठाए, लेकिन ममता ने पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ममता यूपी के अपराध को उछालकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल से बीजेपी के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेकर कहा कि बीजेपी तो बंगाल के विचार से ही पैदा हुई है। बीजेपी के डीएनए में बंगाल होने की बात के साथ ये दावा किया गया कि अब बंगाल में बदलाव होगा। बीजेपी के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये सभी चेहरे लंबे समय से बीजेपी के बंगाल संघर्ष के साथ ही नहीं रहे, लेकिन नए नेताओं और कमांडरों के बूते बीजेपी बता रही है कि बंगाल उसे अपना रहा है। जरूरत सिर्फ टीएमसी के उन आरोपों की काट ढूंढने की है कि वो बाहरी लोगों की पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कोलकाता रैली में ये कहने की कोशिश की कि बीजेपी की विचारधारा तो बंगाल से ही निकली। भाजपा वो पार्टी है जिसकी स्थापना की प्रेरणा बंगाल के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। भाजपा वो पार्टी है जिसके विचारों में बंगाल की महक है। भाजपा वो पार्टी है जिसके संस्कारों में बंगालों की सुवास है, बंगाल की परंपरा की सुवास है। प्रधानमंत्री मोदी जब बंगाल के संस्कारों से बीजेपी को खुला मिला बता रहे थे, तब उन्होंने ममता से लेकर लेफ्ट को घेरा। इसके साथ पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का कमल आज पूरे देश में खिल रहा है। सबसे बड़े राज्य से लेकर सबसे छोटे राज्य तक बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अब बारी बंगाल की है, क्योंकि बीजेपी के डीएनए में बंगाल है। भाजपा वो पार्टी है जिसके डीएनए में बंगाल का सूत्र है। भाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का अधिकार है। भाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का कर्ज है। भाजपा ये कर्ज कभी चुका नहीं सकती, लेकिन बंगाल की माटी का तिलक लगाकर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड की रैली में बहुत लंबा भाषण दिया। दरअसल बहुत ही लंबा भाषण दिया, लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का, और वो गदगद थे इस भीड़ को देखकर। और उसकी वजह भी थी, 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर रैली की थी तो भीड़ अच्छी खासी नहीं हुई थी, और 2014 में जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब इस मैदान को आधा करना पड़ा था, क्योंकि भाजपा के पास उस वक्त न कार्यकर्ता थे न भीड़ थी। बीजेपी बंगाल में असल परिवर्तन के नारे के साथ मैदान में है और बता रही है कि अब तक बंगाल को सिर्फ ठगा गया। आजादी के नारे पर कांग्रेस सत्ता में आई थी। आजादी के बाद कुछ समय काम हुआ, लेकिन फिर बंगाल पर वोट बैंक की राजनीति हावी होती चली गई। जिस हाथ को
वामपंथी तब काला समझते थे, वो आज सफेद कैसे हो गया। जिस हाथ को तोड़ने की बात करते थे, आज उसी का आशीर्वाद लेकर वो चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस के लिए आईना दिखाया, तो वहीं ये बताने की कोशिश भी की कि बंगाल के लोगों के असली दोस्त वही। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक। बड़ी खबर पहले, पंजाब में आज विधानसभा के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे अकाली दल के नेताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार की। ये वो तस्वीर है विधानसभा के बाहर की, जहां पर जबरदस्त हंगामा, अकाली दल के तमाम नेता कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे। कैप्टन सरकार की नीतियों की आलोचना लगातार हो रही है, अंदर सत्र चल रहा है। शुक्रवार को ही बजट सेशन के बाकी हिस्से से अकाली दल के विधायक सस्पेंड कर दिए गए थे। सीधा चलेंगे, सत्येन चौहान मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सत्येन, क्या खबर वहां से? देखिए नवजोत, सबसे पहले तो ये बता दूं, पंजाब विधानसभा का ये आखिरी बजट सेशन है और इसके बाद फरवरी 2022 में चुनाव होने हैं। लिहाजा ये सेशन जब से शुरू हुआ है तब से ही अकाली दल ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। गवर्नर के भाषण से लेकर कैप्टन अमरिंदर के एड्रेस पे भी जमकर हंगामा किया गया और पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नर के लिए जो रेड कारपेट बिछाया जाता है उसे फोल्ड कर दिया गया, गवर्नर के अभिभाषण को फाड़ के फेंका गया। और उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर गवर्नर पर एड्रेस पर रिप्लाई कर रहे थे तो उस समय भी अकाली दल ने जमकर हंगामा किया और शुक्रवार को 3 दिन के लिए तमाम अकाली दल के विधायकों को विधानसभा से जो है सस्पेंड कर दिया गया था। और उसके बाद आज फिर अकाली दल के तमाम विधायक विधानसभा में जाना चाह रहे थे। हालांकि पूरे सेशन के लिए अब इसको निलंबित कर दिया गया है, लेकिन अकाली दल के विधायकों ने आज सेक्रेटरीट, जो कि विधानसभा के बाहर का ये दरवाजा है, जब विधानसभा में घुसते हैं, जो ये तस्वीरें हम आप दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये विधानसभा सचिवालय का दरवाजा है। और यहाँ पर जब इन्होंने घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने इसको रोका, बैरिकेडिंग की, क्योंकि जब भी विधानसभा का सेशन होता है तो भारी तादाद में पुलिस पर यहाँ पर तैनात किया जाता है और वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। जी, नजर आप बनाए रखिए सत्येन चौहान, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। जबरदस्त हंगामा पंजाब विधानसभा के बाहर। आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के तमाम नेता बंगाल में ममता बनर्जी को कई मुद्दों पर घेर रहे हैं। करप्शन से लेकर कानून व्यवस्था को ममता बनर्जी पर सियासी वार लगातार हो रहे हैं और अब तक ममता बनर्जी इन सभी पर सफाई दे रही थी, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने महंगाई को केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा हथियार बनाया है। और जिस अंदाज में ममता बनर्जी ने पेट्रोल, डीजल, गैस के रेट का मुद्दा उठाया है, उसका ठोस जवाब बीजेपी के पास नहीं है। ইলেকশনের আগে উজালা আর ইলেকশনের পরে ঝুমলা। ममता ने केंद्र सरकार की दुखती रग पकड़ ली। महंगाई पर गुस्सा ममता का सियासी हथियार। बंगाल के रण में महंगाई बनेगी मुद्दा। पेट्रोल और डीजल के बेतहाशा बढ़ते भाव बंगाल ही क्या पूरे देश की जनता के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इनके भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सीधे जुड़ने के बाद से कोई नहीं कह सकता कि अगले दिन इनके रेट में बढ़ोतरी का कितना बड़ा झटका लगेगा। अब तक पीएम मोदी का जादू महंगाई के मुद्दे पर भारी पड़ रहा था, लेकिन अब ममता का जरा ये अंदाज देखिए। ममता हाथ में गैस की कीमत से जुड़े सवाल लेकर 2.5 किलोमीटर तक चली और फिर केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोले। বিজেপি কে চাই না, গ্যাসের দাম বাড়ানোর মালিক বিজেপি কে চাই না, রেল বিক্রি করার মালিক বিজেপি কে চাই না, কোল ইন্ডিয়া বিক্রি করার মালিক বিজেপি কে চাই না, ব্যাংক বিক্রি করার মালিক বিজেপি কে চাই না, খাদ্য বন্ধ করার মালিক বিজেপি কে চাই না, গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করার মালিক বিজেপি কে চাই না, পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধি করার মালিক বিজেপি কে চাই না। ममता ने काफी सोच समझकर महंगाई को बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाया है। सिलीगुड़ी में उनकी रैली में काफी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई थी। ममता की रणनीति थी कि उनके खिलाफ बीजेपी के कुछ बड़े मामलों से हटकर चुनाव का एक बड़ा मामला महंगाई बने। জবাব দিন, কেন এলপিজি গ্যাসের দাম 900 টাকার মতো হয়েছে?
হয়েছে এই জবাব আপনাকে দিতে হবে। আগে বলুন ডিজেলের দাম কেন বেড়েছে জবাব দিন, পেট্রোলের দাম কেন বেড়েছে জবাব দিন, গ্যাসের দাম কেন বাড়ছে রোজ জবাব দিন। বাংলা সরকার বিনা পয়সায় চাল দেয় আর 900 টাকায় গ্যাস কিনে পোটাতে হয়, বুঝতে পারছেন? बिना पैसाई चाल और फोटाते गेले 900 टाका। ममता ने पेट्रोल डीजल गैस का मामला उठाया है तो इसकी बड़ी वजह है किचन से लेकर आने जाने पर बड़े खर्च ने हाल ही में लोगों की परेशानियों को बेतहाशा बढ़ाया है। 2 महीने पहले दिल्ली में पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर था और कोलकाता में 85 रुपए 19 पैसे। आज दिल्ली में इसके भाव 91 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर हैं और कोलकाता में 91 रुपए 35 पैसे है। 2 महीने पहले दिल्ली में डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा था। कोलकाता में इसका रेट 77 रुपए 44 पैसे था। आज दिल्ली में डीजल का रेट 81 रुपए 47 पैसे है और कोलकाता में 84 रुपए 35 पैसे है। रसोई गैस का भी झटका सबसे ज्यादा लगा है। दिल्ली में 2 महीने पहले सिलेंडर 694 रुपए का आता था। कोलकाता में इसकी कीमत 720 रुपए 50 पैसे थी। आज गैस का सिलेंडर दिल्ली में 819 रुपए पर बिक रहा है और कोलकाता में 845 रुपए 50 पैसे का। महंगाई ही वो मसला है जो बीजेपी को दाएं बाएं बात करने पर मजबूर कर देता है। ममता महंगाई पर बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। देखना ये है कि क्या इससे निजात के लिए सरकार महंगाई कबूल करने के लिए कुछ कदम उठाती है या नहीं। आज तक ब्यूरो। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी और टीएमसी दोनों में ही जबानी जंग पहले दौर से ही देखने को मिल रहा है और जमकर हो भी रही है। खुद प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर एक के बाद एक बहुत सारे हमले किए। कानून व्यवस्था से लेकर महिला सुरक्षा पर प्रधानमंत्री ने सवाल उठाए और बंगाल में बदलाव का नारा दिया। कुछ घंटों के भीतर ही ममता बनर्जी ने हर आरोप का सिलसिलेवार जवाब भी दे डाला। सियासी समर में आरोप प्रत्यारोप में क्या कहा गया, देखिए और सुनिए। बंगाल के लोगों ने सहा है, बर्दाश्त किया है, लेकिन ये बंगाल के लोगों की महानता है, ये बंगाल के लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति है कि उन्होंने बंगाल में परिवर्तन की उम्मीदों को कभी छोड़ा नहीं। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया। ऐसे शुद्ध बोलें बांग्लाय परिवर्तन होगा, अरे बांग्लाय परिवर्तन होगा ना, बांग्लाय तृणमूल कांग्रेस साथ में परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। अगले 5 वर्षों में बंगाल का विकास अगले 25 वर्षों के विकास का आधार बनाएगा। इसलिए इस बार आप सिर्फ बंगाल में सरकार बनाने के लिए वोट नहीं देंगे, लेकिन बंगाल को बनाने के लिए, बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए वोट डालेंगे। जब 2047 में 25 साल के बाद देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, तब बंगाल सारे हिंदुस्तान को फिर से एक बार आगे ले जाने वाला बंगाल बन जाएगा। জানি না যতগুলো ইলেকশন হচ্ছে দেখে নিন, আগামী দিনে তো 5টা স্টেট ইলেকশন আছে, 5টা ছক্কা খাবেন। भारत माता के आशीर्वाद से सोनार बांग्ला का संकल्प जरूर सिद्ध होके रहेगा। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा। बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा
अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कमीशनबाजी की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट से जुड़े हुए कई काम देखिए कब तक रुके हुए हैं। ऐसे रुके हुए हर काम को भाजपा सरकार में तेज गति दी जाएगी। বাংলা এসে এসে বারবার বলে তোলাবাজি, সবচেয়ে বড় তোলাবাজ তো আপনি। সেল বিক্রি কত? একটা গরিব লোক তোলাবাজি করলে 5 টাকা 10 টাকা 5 টাকা, আর আপনারা করলে আপনার আদানি বন্ধু আপনারা করলে কত? রেল বিক্রি করলে কত তোলাবাজি হয়? সেল বিক্রি করলে কত তেলাবাজি হয়? এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি করলে কত তোলাবাজি হয়? কোল इंडिया बिक्री करले कत तेलाबाजी है? उजाला गैस कहा गया? उजाला का रोशनी कहा गया? कैग रिपोर्ट में भी बोला कि उजाला में स्कैंडल हुआ, उजाला में आपका आदमी सब खा लिया, गड़बड़ किया, तोलाबाजी खाली नहीं किया, कोटि कोटि रुपया खा लिया। सिंडिकेट, what syndicate? India knows only one syndicate, that is Narendra Modi or Amit Shah. There is no other syndicate.